हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस वीक्स रिवीजन क्लास ऑफ एसएसटी। सो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कि इंडिया की टेक्सटाइल्स ब्रिटिश रूल से पहले कैसी थी। ठीक है। So before the British rule, India was the world largest producer of cotton textiles. So ब्रिटिश रूल के आने से पहले क्या था, इंडिया सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करता था कॉटन का टेक्सटाइल। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इंडियन टेक्सटाइल्स वर रिनोड बोथ फॉर देयर फाइन क्वालिटी एंड एग्जिबिट क्राफ्टमैनशिप। इसका मतलब क्या है कि जब जो इंडिया का क्लोथ था वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी का होता था और देखने में इतना अच्छा होता था, ऐसे डिज़ाइन होते थे जो किसी ने कभी देखे नहीं होते थे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखो, नेक्स्ट दे वर एक्सटेंसिवली ट्रेडेड इन साउथ ईस्ट वेस्ट एंड सेंट्रल एशिया। तो सामान जो इंडिया का था उसकी इतनी डिमांड थी कि वो बहुत दूर दूर तक सप्लाई किया जाता था। ठीक है। फ्रॉम द 16th century onwards, even European trading companies began buying Indian textile for sale in Europe. तो 16th century जब आई उसके बाद यूरोपियन कंट्रीज भी इंडिया का सामान लेने लग गई बेचने के लिए, बिकॉज इट वॉज वेरी वेरी गुड। ओके। Now we will study how the revolt of 1857 spreaded in India. Spread of the revolt of 1857. By the middle of the 19th century, there was growing resentment among the people against the British rule. The local rulers were unhappy with the British policies that rendered them powerless. The peasants were dissatisfied with the exploitative policies of the British. The sepoys resented the British rule as they were treated unequally in comparison to their British counterparts. The general masses were also discontented with British rule as they interfered with the local customs and religious beliefs of the people. The final trigger for the revolt was a growing belief among the sepoys that the British had introduced cartridges greased with cow and pig fat for the Enfield rifles. Using these cartridges would have violated their religious beliefs. This thought fueled suspicion among the Indian soldiers. In February 1857, at Behrampur, the soldiers refused to use the rifles with the greased cartridges. Soon, the idea of not using greased cartridges spread across other areas like wildfire. On the 29th of March 1857, one of the sepoys of the 19th Bengal Native Infantry, named Mangal Pandey, openly revolted in the Barakpur cantonment. 6 days later, he was hanged to death for revolting against the use of greased cartridges. The revolt spread to Meerut, a large military cantonment with one of the largest concentrations of British troops in India. On April 24th, 90 sepoys at the Meerut cantonment were asked to practice using the new Enfield rifles with the greased cartridges. 85 sepoys refused to use the cartridges. They were stripped of their uniform and were sentenced to 10 years of rigorous imprisonment for defying the order to use grease cartridges and harboring ill feelings towards their superiors. However, the next day, the rest of the sepoys of the regiment mutinied and released the 85 imprisoned soldiers. Together, they marched towards Delhi. On the morning of 11th May 1857, the troops arrived in Delhi and persuaded the Mughal Emperor Bahadur Shah Zafar to be the leader of their revolt. Reluctantly, Bahadur Shah Zafar agreed to be the leader of the revolt and wrote letters asking different Indian rulers to unite against British rule. Other rulers and Nawabs who didn't support the British policies came together to lead the movement. As the revolt broke out in Delhi and Meerut, other places joined in too. Punjab, Naushera and Hatmardan soon joined the revolt. The revolt spread to many places in present-day Uttar Pradesh. Many prominent leaders such as Nana Sahib, Begum Hazrat Mahal, Rani Lakshmi Bai, and Tatya Tope
led the revolt in different parts of the country. Nana Sahib led the revolt in Kanpur. Begum Hazrat Mahal led the revolt in Awadh, with its capital at Lucknow, on behalf of her son Birjis Qadar. In Jhansi, the revolt was led by Rani Lakshmibai, with the help of Tatya Tope. Soon, the revolt spread to other parts of India, with Bihar, Dhaka, Rajasthan, Mandla, Central India, and the Deccan joining the upsurge. This is how the revolt of 1857 spread to many parts of northern India and united people across religions and cultures for the first time to come together against the oppressive British rule. अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हु वर वीवर्स। तो वीवर्स कौन थे? तो जो लोग कपड़े को सिलते थे, सिलाई करते थे मशीन से, उन्हें क्या कहा जाता था? उन्हें वीवर्स कहा जाता था। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे द डिक्लाइन ऑफ इंडियन टेक्सटाइल्स। थी इंडियन की टेक्सटाइल, जो इंडिया की इंडस्ट्रीज थी कपड़ों वाली, वो उनका डिक्लाइन क्यों हुआ, वो नीचे क्यों गिर गई। ठीक है, तो हम रीजंस पढ़ते हैं कि डिक्लाइन क्यों हुआ इंडियन कॉटन इंडस्ट्री का या इंडियन क्लोथ इंडस्ट्री का। तो पहला रीजन था द डेवलपमेंट ऑफ कॉटन इंडस्ट्रीज इन ब्रिटेन एडवर्सली इफेक्टेड टेक्सटाइल प्रोड्यूसर इन इंडिया। इंडियन टेक्सटाइल नाउ हैव टू कॉम्पिटिट विद ब्रिटिश टेक्सटाइल्स इन दिस मार्केट्स। तो क्या हुआ, ब्रिटेन के अंदर बहुत बड़ी मिल्स खुल गई जहाँ पे कपड़ा मैन्युफैक्चर होने लगा, और जो इंडिया का जो अब कॉटन इंडस्ट्री थी, उनके पास वो टेक्नोलॉजी नहीं थी जो ब्रिटिशर्स के पास थी। उनके पास बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी थी, इस वजह से उनका सामान सस्ता बनता था। ठीक है, लेकिन इंडिया वाला सामान इतना सस्ता नहीं बन पाता था, इसलिए उनको कॉम्पिटिट करने में प्रॉब्लम आने लगी पूरे वर्ल्ड के अंदर। ठीक है, और दूसरा रीज़न ये था द एक्सपोर्ट ऑफ इंडियन टेक्सटाइल वाज आल्सो इफेक्टेड एज वेरी हाई ड्यूटीज वर इम्पोज्ड ऑन इंडियन टेक्सटाइल्स। तो क्या किया गया, जब ब्रिटिशर्स का राज आ गया, उन्होंने क्या किया, जो इंडिया की इंडस्ट्रीज थी उनके ऊपर बहुत सारी एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा दी, जिससे क्या हुआ, बाहर की कंट्रीज में सामान बेचना महंगा होने लगा इंडियंस के लिए। अब नेक्स्ट देखो, एज एक्सपोर्ट ऑफ इंडियन टेक्सटाइल डिक्रीज, थाउजेंड्स ऑफ इंडियन वीवर्स एंड स्पिनर्स वर थ्रोन आउट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। बंगाल वीवर्स वर अमंग द वर्स्ट हिट। तो क्या हुआ, जब एक्सपोर्ट कम हो गया तो क्या हुआ, जिन लोगों के पास काम था, कंपनीज ने या फैक्ट्रीज ने उनको निकालना शुरू कर दिया, क्योंकि इतनी सेल नहीं रही उस कपड़े की। ठीक है, इसकी वजह से क्या हुआ, बहुत बड़ी अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन क्रिएट हो गई कंट्री के अंदर। और सबसे ज़्यादा जो धक्का लगा था वो कहाँ पे लगा, बंगाल में, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो बंगाल में ही फैक्ट्रीज थी जहाँ से एक्सपोर्ट किया जाता था। तो सबसे ज़्यादा नुकसान किसको हुआ, बंगाल के वीवर्स को। ठीक है, नेक्स्ट देखो, पर इतना सब होने के बाद भी इंडियन हैंडलूम वीविंग इंडस्ट्री डिड नॉट डाई कंप्लीटली। वो पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हुई। ठीक है, ऐसा क्यों नहीं हुआ, क्योंकि देयर वॉज स्टिल डिमांड फॉर प्रोड्यूस फाइनली वूवन क्लोथ्स और टेक्सटाइल विद इंटीग्रेट डिज़ाइन और वेरी कोर्स क्लोथ यूज्ड बाय पुअर पीपल इन इंडिया। तो क्या हुआ, जो इंडिया के जो कपड़े डिज़ाइन थे वो बहुत ही अलग तरीके के थे, और बहुत ही ज़्यादा वो मशीन वो डिज़ाइन नहीं बना सकती थी, क्योंकि वो इंडियंस हाथ से उस डिज़ाइन को बनाते थे। ठीक है, तो ऐसे कपड़े की डिमांड बाहर थी, तो वो वाला कपड़ा इंडिया का बिकता रहा। ठीक है, और इस डिमांड की वजह से क्या हुआ, वेस्टर्न और साउथर्न इंडिया में नई नई वीविंग सेंटर्स खुलने लग गए। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद महात्मा गांधी ने जो हमारे नेशनल मूवमेंट करने के बाद हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री को रिवाइव किया। ठीक है, नेक्स्ट है मैनी ऑफ द वीवर्स हु लॉस्ट देयर जॉब ड्यूरिंग द डिक्लाइन ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्री बिकेम एग्रीकल्चर लेबरर। तो जिनका काम खत्म हो गया था या जिनको निकाल दिया गया था फैक्ट्रीज से, वो फिर क्या बन गए, वो एग्रीकल्चर लेबरर बन गए, वो दिहाड़ी पे एग्रीकल्चर के लिए काम करने लग गए। ठीक है, नेक्स्ट क्या था, सम ऑफ देम माइग्रेटेड टू अदर सिटीज for work and some became plantation workers in Africa and South America। तो कई लोगों ने क्या किया, कोई और काम करना शुरू कर दिया, और कई लोग की माइग्रेंट साउथ काम ना होने की वजह से अफ्रीका और साउथ अमेरिका चले गए वहां पे काम करने। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीक क्लास। सी यू ऑल इन नेक्स्ट रिवीजन क्लास।